Hello students. In the last video we have seen what is the exact concept of real numbers and the closure property regarding to the real numbers. I hope so you well understood. I hope so you understood that point. What is the exact concept of real numbers and after that closure property regarding to the real numbers. Now today I am going to start the next point from this lesson. The point is front of you. I have written here title already. If you will see carefully then you will come to know that the title is commutativity. The title is commutativity. It is the same as like that closure property. It is also one type of property. Means before that we have seen that closure property. That like that it is also one type of property. Means the name of the next point is or next property is known as commutativity. Before that also first of all we have seen closure property regarding to whole numbers. After that we have discussed regarding to the integers, and after that we reach to the rational numbers. Same thing we will follow here also. First of all I will tell you what is the commutativity regarding to the whole numbers, then we will see regarding to the integers, and then we will go to the rational numbers. That will be easy for us for understanding purpose. Okay, now I am going to start this commutativity property or commutativity regarding to whole numbers. Okay, now look here also we are going to use 4 operations as like last point we have seen. Okay, means which one the 4 operations. First operation is known as addition, second operation is known as subtraction, third operation is known as multiplication, and last one division. Here also we are going to use those 4 operations regarding to these whole numbers. I am going to start. I am going to draw here one table for your better understanding. Look here. First point, operations. पहले हम क्या लिखते हैं ऑपरेशंस, बाद में इधर दूसरा पॉइंट मैं ले रहा हूँ नंबर्स, यानी कि जो एग्जाम्पल्स मैं लेने वाला हूँ वही एग्जाम्पल्स आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर, एंड फाइनली वी आर गोइंग टू राइट रिमार्क्स. फाइनली वी आर गोइंग टू राइट रिमार्क्स, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज हियर एडिशन प्रॉपर्टी. एडिशन प्रॉपर्टी यानी कि एडिशन ऑपरेशन वी विल यूज हियर. आफ्टर दैट we will take some examples. And what is the remark? What is the remark in which sense? In the last property also we have seen that we have used here addition, we have used here examples, we have taken here examples, and finally here we have written what we have written in the closure property. In the closure property we have written whole numbers are closed under addition. ऐसे लिखा था हमने, तुम्हें ध्यान में आ रहा होगा थोड़ा बहुत. You can remind it properly. Are you getting? तो ऐसे ही हमें इधर क्या लिखना है, वो कम्यूटेटिव है कि नहीं है ये हमें रिमार्क्स में लिखना है. कैसे करना है देखो. आई एम गोइंग टू स्टार्ट हियर. इट्स वेरी वेरी सिंपल प्रॉपर्टी. दे में आस्क्ड इन द एग्जाम आल्सो दोज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड. दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. रिमेंबर. ओके, लुक हियर. आई एम गोइंग टू स्टार्ट एडिशन. क्या है? एडिशन. ओके, पहला ऑपरेशन कौन सा लिया हमने? एडिशन. एडिशन में नंबर्स लेंगे. अभी एक एग्जांपल लेता हूँ इधर. व्हाट इज मीन बाय कम्यूटेटिविटी? बाय लुकिंग दिस एग्जांपल यू विल कम टू नो दैट. फर्स्ट ऑपरेशन आई हैव टेकन एडिशन. एडिशन किसके बारे में हम करने जा रहे हैं? होल नंबर्स के बारे में. वी आर गोइंग टू डू एडिशन रिगार्डिंग टू होल नंबर्स. ओके, तो देखो पहला एग्जाम्पल 0 + 7. 0 + 7. अगर 0 + 7 किया जाए तो आंसर कितना आएगा? 7. ओके, 0 + 7. इसमें देखो पहला नंबर कौन सा है? 0. दूसरा नंबर कौन सा है? 7. बोथ आर होल नंबर्स. ओके, इधर भी हमें कौन से नंबर कंसिडर करने हैं? होल नंबर्स, क्योंकि प्रॉपर्टी किसके बारे में चल रही है? होल नंबर्स के बारे में. 0 + 7 = 7. अगर मैं ऐसा लिखूं, पहला नंबर इधर 0 है, दूसरा नंबर इधर 7 है, अगर मैं ऐसा लिखूं 7 + 0 तो आंसर क्या आएगा? 7. यानी कि इसका मतलब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये इसमें हम यही सीखने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ओवर हियर, वी आर गोइंग टू लर्न ओवर हियर. व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न ओवर हियर? हियर वी आर गोइंग टू लर्न इफ यू आर गोइंग टू चेंज द सीक्वेंस. If you are going to change the sequence of the number, then also we are getting same answer or not. Sequence means what? Sequence means what? 0 पहले था, सेकेंड पोजीशन पे 7 था, तो पहले हमने 7 लिया, बाद में 0 लिया. 0 + 7 = also 7 and 7 + 0 = also 7. अगर ऐसा हो रहा है यानी कि सीक्वेंस चेंज करने के बाद भी सेम आंसर आ रहा है तो उसको बोलते हैं कम्यूटेटिविटी. ओके,
क्यों, इसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिविटी। और एक एग्जांपल लेता हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ओके, देखो इधर ये पहला एग्जांपल हो गया, अभी दूसरा एग्जांपल एक ले रहा हूँ मैं इधर। 2 + 3 = 5। अगर मैंने ऐसा किया, अभी इधर देखो पहले नंबर पे कौन है, पहले पोजीशन पे 2 है, दूसरे पोजीशन पे कौन है, 3 है। पहले पोजीशन पे कौन है, ध्यान से देखो 2 है, दूसरे पोजीशन पे कौन है, 3 है। अगर मैं इसकी सीक्वेंस चेंज करूँ तो आंसर चेंज होगा क्या, देखो 3 + 2 = कितना आ गया, 5। सीक्वेंस चेंज करने के बाद भी आंसर वही आ रहा है, यानी कि फॉर एनी टू होल नंबर्स ए एंड बी, हियर फॉर एनी टू होल नंबर्स, समझो हमने इसको ए कंसिडर किया और इसको बी कंसिडर किया, इसको ए और इसको बी, इधर इधर देखो, इसको हमने क्या कंसिडर किया, ए कंसिडर किया, समझो इसको हमने क्या कंसिडर किया, ए, और इसको हमने कंसिडर क्या किया, बी कंसिडर किया, समझो। ओके, तो फॉर एनी टू होल नंबर्स ए एंड बी, हियर व्हाट वी आर गेटिंग, पहले हमने ए प्लस बी किया था और नेक्स्ट हमने क्या किया, बी प्लस ए किया था। समझ में आ रहा है, पहले हमने क्या किया था, ए प्लस बी, यानी कि पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर, और बाद में हमने क्या किया, दूसरा नंबर प्लस पहला नंबर, तभी हमें क्या आया आंसर, सेम ही आ गया इधर, तभी हमें आंसर क्या आ गया, सेम ही आ गया। आर यू गेटिंग, डू यू अंडरस्टैंड, यानी कि ए प्लस बी = बी प्लस ए हो गया, ए प्लस बी = क्या हो गया, बी प्लस ए। तो हम क्या लिखेंगे कंक्लूजन, एडिशन ऑफ होल नंबर इज कम्यूटेटिव, एडिशन ऑफ होल नंबर्स इज कम्यूटेटिव। अदरवाइज डायरेक्टली ऐसा भी हम लिख सकते हैं, एडिशन इज कम्यूटेटिव, एडिशन इज कम्यूटेटिव। समझे, कितना सिंपल है, देखो समझ में आ रहा है कुछ, आई थिंक यू आर गेटिंग आइडिया अबाउट इट। यानी कि पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर आंसर जो आया, वही अगर सीक्वेंस चेंज करने के बाद सेम आंसर आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, एडिशन इज कम्यूटेटिव। ओके, नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट ऑपरेशन में हम जाएंगे। ऐसे ही हम 4 ऑपरेशन देखने वाले इधर। सेकेंड ऑपरेशन कौन सा हो गया, इधर देखो, आई एम गोइंग टू स्टार्ट हियर। सेकेंड ऑपरेशन, यू नो दैट वेरी वेल, सब्ट्रैक्शन। ओके, सेकेंड ऑपरेशन कौन सा है, सब्ट्रैक्शन। इधर भी हम 2 एग्जांपल लेंगे, देखो समझो, मैंने पहला एग्जांपल लिया, 5 - 2 = क्या हो गया, 3। 5 - 2 = क्या हो गया, 3। अब ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, सीक्वेंस चेंज करो, अभी इसकी सीक्वेंस क्या करो, चेंज करो। ओके, तो हम करेंगे 2 - 5, 5 - 2 हमने पहले किया, 5 - 2 कितना आ गया, 3। अगर 2 - 5 किया तो कितना आएगा, 5 में से 2 गए, 3 रह गए, बट ग्रेटर नंबर कौन सा है, 5, तो उसका साइन क्या आ गया, माइनस। अब इधर तो क्या हो गया, देखो एक +3 आ गया, दूसरा -3 आ गया, दोनों नंबर सेम है क्या, दिखने में सेम दिख रही है, बट साइन इज डिफरेंट, तो इधर क्या हो गया, देखो +3 और -3, ये दोनों नंबर सेम नहीं है, ये दोनों नंबर क्या है, सेम नहीं है। ओके, तो हमें इधर क्या, देखो हमने पहला नंबर कौन सा कंसिडर किया था, इधर ए, और दूसरा नंबर क्या कौन सा कंसिडर किया था, बी, इधर भी वही कंसिडर करेंगे, पहला नंबर ए, दूसरा नंबर बी। तो हमें इधर क्या मिला, फॉर एनी टू होल नंबर्स, हमें इधर क्या मिला, 5 - 2 = 3 आ गया, और 2 - 5 = -3 आ गया, यानी कि दोनों नंबर अलग अलग आ रहे हैं, दोनों आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। तो हम इधर लिख सकते हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, a - b is not equal to b - a, a - b is not equal to b - a, इक्वल नहीं है, आंसर इक्वल नहीं है, तो हम इधर क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। क्या लिखेंगे इधर, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, अंडरस्टूड, यानी कि ओनली सीक्वेंस चेंज करके दिखना है, इतना सिंपल है ये। बाद में देखो थर्ड ऑपरेशन कौन सा है, तुम्हें मालूम है अभी, तीसरा ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, इधर भी हम एक एग्जांपल लेंगे, देखो ओके, समझो मैंने पहला एग्जांपल लिया इधर, 4 × 3 कितना आ गया, 12,
4 इंटू 3 कितना आ गया 12। अगर सिक्वेंस चेंज करेंगे 3 इंटू 4, यानी कि पहला नंबर इधर कौन सा था 4, दूसरा नंबर 3, तो इधर पहला ये लिया 3 और दूसरा लिया 4। तो अभी देखो 3 इंटू 4 कितना आता है 12, यानी कि दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। देखो दोनों आंसर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। 4 इंटू 3 12 आ गया, 3 इंटू 4 भी 12 आ गया। ओके, इसको हम क्या कंसिडर करते हैं, पहले नंबर को A, दूसरे नंबर को B। ओके, तो कैसे लिखेंगे हम, A इंटू बी इज इक्वल टू B इंटू ए, यानी कि पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर 12 ही आ गया था और दूसरा नंबर इंटू पहला नंबर 12 ही आ गया है। तो दोनों आंसर क्या हो गए, सेम हो गए, इक्वल हो गए। समझ में आ रहा है। ओके, तो हम इधर क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन इज क्या लिखेंगे, कम्यूटेटिव। समझ में आ रहा है क्यों लिखा है मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। आर यू गेटिंग। इधर रेशियो हमें क्या आ गया, सेम आ गया। अभी लास्ट चौथा ऑपरेशन कौन सा है, चौथा ऑपरेशन डिवीजन। डिवीजन, ओके, डिवीजन में देखो एक एग्जांपल लेता हूं इधर, 4 डिवाइडेड बाय 2। अगर 4 से 2 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आएगा 2। अभी चेंज करो, उल्टा कर दो इसको, 2 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा 1/2। आंसर सेम है क्या, नहीं है, एक आया 2 और दूसरा आ गया 1/2। आर यू गेटिंग। तो हम इधर क्या लिख सकते हैं, पहला नंबर को हम क्या कंसिडर करते हैं, A डिवाइडेड बाय B इज नॉट इक्वल टू B डिवाइडेड बाय A डिवाइडेड बाय B इज नॉट इक्वल टू B डिवाइडेड बाय A, यानी कि डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। व्हाट, डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। समझ में आ रहा है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, विच इज द फर्स्ट पॉइंट, होल नंबर्स। हमने होल नंबर्स पहले फर्स्ट पॉइंट कंसिडर किया था। होल नंबर्स कंसिडर करने के बाद व्हाट वी हैव डिड, वी हैव यूज्ड फर्स्ट ऑपरेशन एडिशन। एडिशन में देखा हमने एडिशन इज कम्यूटेटिव है। दूसरा हमने देखा, ये देखो एडिशन इज कम्यूटेटिव क्योंकि सीक्वेंस चेंज करके भी सेम आंसर आता है। दूसरा हमने देखा सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव क्योंकि पहला नंबर यानी कि A माइनस बी इज नॉट इक्वल टू B माइनस ए। तीसरा ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन, A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए आ गया, यानी कि मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव। चौथा ऑपरेशन डिवीजन, डिवीजन में A अपॉन बी इज नॉट इक्वल टू B अपॉन ए, तो हमने क्या लिखा, डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। सीक्वेंस चेंज करके आंसर जो आता है वो सेम आता है क्या, ये ही खाली देखना है, बाकी कुछ भी नहीं देखना है, सिंपली यही हमें देखना है। यू अंडरस्टैंड, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, होल नंबर्स। अभी नेक्स्ट पॉइंट में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ओके, ये पहला पॉइंट है अपना होल नंबर्स। अभी नेक्स्ट पॉइंट में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, दैट इज फॉर इंटीजर्स। ओके, इधर देखो, अभी इंटीजर्स के बारे में हम देखेंगे। सेम प्रॉपर्टीज हम कौन से कंसिडर करेंगे, अभी इंटीजर्स। कौन कंसिडर करेंगे, इंटीजर्स। सेम टेबल में कैरी करने जा रहा हूं अभी। ओके, एक बात ध्यान में रखो, अभी क्या करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या किया है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सिंपली हमने क्या किया है, पहला नंबर एडिशन में पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर, ओके, जो आंसर आता है वो दूसरा नंबर प्लस पहला नंबर, सीक्वेंस चेंज करके वही आंसर आता है क्या, वही यही देखना है। दैट इज नथिंग बट कम्यूटेटिविटी। ओके, now we'll start regarding to the integers. ready, look, सेम टेबल में बनाऊंगा। इधर क्या लिखा था मैंने, ऑपरेशंस, इधर लिखा था नंबर्स और इधर लिखा था रिमार्क्स। ओके, तो पहला ऑपरेशन कौन सा, पहला ऑपरेशन है एडिशन। अभी दो इंटीजर्स लेंगे, एक एग्जांपल लेता हूं, देखो इधर समझो, 6 प्लस 8 कितना आता है, 6 प्लस 8 14, 6 प्लस 8 14 आ गया। अगर 8 प्लस 6 किया जाए तो
कितना आता है, 14 आता है। समझ में आ रहा है? यानी कि पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर इज इक्वल टू 14 और दूसरा नंबर प्लस पहला नंबर किया तो भी 14 ही आता है। समझ में आ रहा है? एक बात ध्यान में रखो, पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर यानी कि ये इधर जो नंबर है उसको पहला हमने बोला है और ये दूसरा हमने बोला है। ओके, और सीक्वेंस चेंज करते वक्त ऐसे ही करना है, ये दूसरा पहले लेना है और पहला दूसरे में लेना है। ओके, आर यू गेटिंग? तो हमने इधर क्या देखा, देखो फॉर एनी टू इंटीजर्स क्या हुआ इधर, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर इज इक्वल टू दूसरा नंबर प्लस पहला नंबर, यानी कि हम डायरेक्टली इधर क्या लिखेंगे, एडिशन इज कम्यूटेटिव, एडिशन इज व्हाट, कम्यूटेटिव। आर यू गेटिंग? इतना सिंपल है। देखो नेक्स्ट कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन। कौन सा है, सब्ट्रैक्शन। अभी करो, एक एग्जांपल लेता हूं इधर, 5 माइनस, समझो मैंने लिया -3, 5 माइनस -3, तो आंसर क्या आता है देखो, इज इक्वल टू 5 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 5 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आया आंसर, 8। चेंज करता हूं सीक्वेंस, अभी दूसरा नंबर है -3, पहला नंबर है 5, क्या करने जा रहे हैं हम, सब्ट्रैक्शन, तो बीच में आएगा माइनस साइन। इधर देखो सेम साइन है, इधर भी एडिशन होगा। ओके, 3 प्लस 5 8, साइन है माइनस यानी कि -8, 3 प्लस 5 कितने हो गए, 8, साइन है माइनस यानी कि -8। अभी आंसर देखो सेम है क्या, एक आया है +8 और दूसरा आया है -8, यानी कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। ओके, यानी कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, इक्वल नहीं आया रेशो, इधर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। ओके, नेक्स्ट तीसरा ऑपरेशन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन। कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं, 5 इंटू, सपोज आई हैव टेकन -3। ओके, 5 इंटू -3 कितना आता है आंसर देखो, इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, 5 इंटू 3 15 होगा, तो आंसर कितना आया, -15। अभी चेंज करके देखते हैं सीक्वेंस, पहले ले लेंगे -3 इंटू 5, माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 इंटू 5 15, आंसर कितना आया, -15, यानी कि पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर -15 आ गया और दूसरा नंबर इंटू पहला नंबर भी -15 आ गया, यानी कि क्या हुआ इधर, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, यानी कि मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो कम्यूटेटिव, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव। ओके, और लास्ट अभी कौन सा बचा, डिवीजन। ओके, अभी डिवीजन में लेंगे, मैं 2 नंबर लेता हूं इधर देखो, समझो मैंने एग्जांपल ऐसा लिया, -10 डिवाइडेड बाय 5, -10 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 10 को 5 से डिवाइड करना है, 10 को 5 से डिवाइड करने के बाद आंसर क्या आता है, 2, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, बट साइन कौन सा है, माइनस, यानी कि आंसर क्या आ गया, -2। ओके, अभी साइन, अभी नंबर चेंज करेंगे, सीक्वेंस चेंज करेंगे, ये ऊपर लेंगे और नीचे लेंगे, 5 डिवाइडेड बाय -10, तो आंसर क्या आ गया देखो, 1 अपॉन -2। 1 अपॉन -2 कैसे, इधर भी सेम, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, यानी कि 1/2, और साइन कौन सा है, माइनस, इसलिए 1 अपॉन -2। इधर क्या हो गया देखो, सेम थिंग हो गई, ये -2 है, ये -1/2 है, यानी कि a अपॉन बी इज नॉट इक्वल टू b अपॉन ए, a अपॉन बी इज नॉट इक्वल टू b अपॉन ए,
डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। क्या हुआ इधर? डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। समझे? डू यू अंडरस्टैंड? दोज आर द 4 ऑपरेशंस रिगार्डिंग टू विच नंबर? इंटीजर्स। आर यू गेटिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन, सेकेंड सब्ट्रैक्शन, थर्ड वन मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ वन डिवीजन। इसमें सिंपल यही करना है कम्यूटेटिव में। जो नंबर्स हमने लिए हैं वो नंबर्स की ओनली सीक्वेंस चेंज करना है। सीक्वेंस चेंज करने के बाद भी सेम आंसर आ रहा है, यानी कि दोनों तरफ सेम आंसर। इधर देखो 14 14, इधर सेम नहीं आया, इधर 14 14 आया, इसलिए एडिशन इज कम्यूटेटिव। इधर 8 माइनस 8 आया, इसलिए ए इक्वल नहीं आया है, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, तो इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव। मैंने एक सेपरेट पेज पे लिखा है फॉर योर नोट्स पर्पज, उधर भी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लिसन केयरफुली एवरीवन। ओके, ये है तुम्हारे नोट्स। इन नोट्स में तुम ऐसे लिखो। आज हमने पॉइंट शुरू किया था। कौन सा पॉइंट शुरू किया था तुम्हें मालूम है? इधर लिखा है देखो, कम्यूटेटिविटी। कैसे बोलना है? कम्यूटेटिविटी। उसमें पहला पॉइंट मैंने शुरू किया है होल नंबर्स। होल नंबर्स के बाद इंटीजर्स हमने देखा। ओके, फॉर व्हाट पर्पज? वी आर लुकिंग दोज ऑल पॉइंट्स फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग पर्पज, फॉर आवर प्रिपरेशन पर्पज। अब इधर देखो, पूरा टेबल तुम्हें इधर दिखेगा। होल नंबर्स, ये पूरा पेज दिख रहा है देखो। मैं सीक्वेंस में से दिखाने जा रहा हूँ। इधर कम्यूटेटिविटी, होल नंबर्स, पहला ऑपरेशन एडिशन। जो एग्जांपल्स है उधर जो मैंने बोला था इधर लिख के दिया है तुमको। फॉर एनी 2 होल नंबर्स a एंड b, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो एडिशन इज कम्यूटेटिव। इधर नॉट इक्वल टू साइन है। इधर देखो, सब्ट्रैक्शन में आंसर इक्वल नहीं आता, 3 और -3 आया है देखो इधर, इसलिए सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। बाद में मल्टीप्लिकेशन हमने लिखा था। मल्टीप्लिकेशन में 12 और 12 ही आया है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। और लास्ट है डिवीजन। डिवीजन में देखो 2 और 1/2 आया है इधर, यानी कि डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। ये है इंटीजर्स, ये है होल नंबर्स के बारे में। फिर से मैं पूरा पेज दिखा रहा हूँ फॉर योर नोट्स पर्पज। देखो इधर ऐसे के ऐसे नोट्स में कॉपी करो। ओके, ये था होल नंबर्स का। अभी इंटीजर्स का दिखा रहा हूँ। इंटीजर्स का भी एज इट इज कॉपी करो। ये देखो, इंटीजर्स में एडिशन हमने की, एडिशन इज कम्यूटेटिव। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। एंड डिवीजन, डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव। अभी पूरा पेज देखिए एंड यू हैव टू राइट इट इन द नोट्स। Okay, I hope so you got idea about the commutative property of whole numbers and integers. In the next video I am going to explain this commutative property regarding to the rational numbers. Thank you.